Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IPMAT by LPT. In this series of concept booster, today we have a very small concept from the larger topic of permutation and combination. The topic for the day is how to distribute distinct objects in distinct groups. So let us understand this with a very basic example. Let us consider that there are 5 people P1, P2, P3, P4 and P5. They have to be, or they are traveling from one point to the other, and they have 3 cars available, C1, C2 and C3. So they have to be seated in these 3 different vehicles या 3 different cars. अब वो कार के अंदर का अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, बस बिठाना है. What matters is which person will sit in which car. So you have to distribute 5 different people in 3 different cars. How many ways are there? Very straightforward. This question is, अगर कोई restriction नहीं है, if there is no restriction as to who can go where, then it's pretty easy to distribute. कैसा? Let's focus on the number, on people. The first person can sit in either car 1 or car 2 or car 3. So he has 3 options. Similarly, second person can sit either in car 1, car 2 or car 3. He also has 3 options. There is no capacity of car, right? All 5 can sit in one car. It has that much capacity. Person 3 also has 3 options of these 3 cars. This has 3 options. This person has 3 options. So the total number of ways comes out to be how much? 3 to the power 5, which comes out to be 243 ways. 243 ways. Now this is your answer if there is no restriction. No restriction as in it is possible that all 5 of them sit in this car and no one sits in the other 2 cars. That's possible. Or 5 of them sat in second car, none of them sat in the other 2 cars. Or 500, that is also possible. Or it is possible that 1 person sat in first car, 2 persons sat in the second car and 2 persons sat in the third car. Any of this combination is possible. So there is no restriction as to how many people must sit in any of these cars. Okay? Now, what if there is restriction? If there is no restriction, you don't have to do anything, as in you have to obviously do something, but you simply have to focus on the objects and see how many groups are there available. So you distribute each object in the 3 different groups in 3 into 3 into 3 into 3 into 3 and these many. If there were 4 cars, this would have been 4 into 4 into 4 into 4 into 4, 4 की power 5, 2 power 10, 1024 हो जाता है वो. ठीक है? तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो if there are distinct objects in distinct groups without any restrictions. Okay? Now, what if there is restriction? अगर restriction हो, the restriction is, one second, P1. The restriction now is none of the cars should be empty. None of the cars should be empty. मतलब at least one person should travel in each of these 3 cars. Now this becomes a little challenging question. ये अब उतना आसान नहीं रहा. At least one बंदा हर एक कार में जाना ही चाहिए. तो इसके लिए to solve such kind of questions, what you need to do is you need to do grouping first of all. अब आपको ग्रुपिंग्स करनी है. ग्रुपिंग्स करनी है मतलब क्या कि कौन किस कार में बैठेगा वो तो बात की बात है. ये देखो कि हर कार में कितने कितने लोग बैठेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि 1, 1 एंड 3 ये वाला सिचुएशन बन जाए. अब 1, 1, 3 में ये भी हो सकता है 1, 3, 1 हो जाए या 3, 1, 1 हो जाए. मतलब कि 2 कार में एक बंदा बैठेगा और एक कार में 3 लोग बैठ जाएंगे, तो 5 लोग इस तरीके से बैठेंगे. तो ये एक ग्रुपिंग हो गई. ग्रुप्स में अरेंजमेंट भले अलग अलग है. एक दूसरा क्या हो सकता है 1, 2, 2 या फिर 2, 1, 2 या फिर 2, 2, 1. एक पर्टिकुलर ग्रुपिंग ये हो गई. किस कार में तो नहीं, हर तीनों कार में कितने कितने बंदे बैठ रहे हैं. एक एक 3 का एक ग्रुपिंग बन सकता है या 1 to 2 का एक ग्रुपिंग बन सकता है. और कोई ग्रुपिंग बनेगा क्या 5 लोगों का 3 कार में? 2 to 2 तो हो नहीं सकता. ठीक है, 1 to 2 ही हो पाएगा. 1, 1 होगा तो 3. तो भाई ये 2 ग्रुप बनेंगे और ये ग्रुपिंग इस तरीके से अरेंज की जा सकती है. चलो
तो आप इसके लिए चेक करते हैं हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर दिस। तो भाई फर्स्ट कार में एक बंदा बैठना है, वो एक बंदा कौन हो सकता है? इन 5 में से कोई भी एक बंदा हो सकता है। तो कार 1 में एक बंदा सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5C1 विच इज 5। ठीक है, अब आ जाओ। अब बचे कितने? 4 लोग। 4 लोगों में से एक हमें कार 2 में बिठाना है। कार 1 और कार 2 दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। तो कार 2 में अब हमें एक बंदा बिठाना है, तो वो एक बंदा कौन बैठ सकता है? बाकी 4 में से एक सिलेक्ट करो और उसे कार 2 में बिठा दो, एज सिंपल एज दैट। फाइन। और अब बचे जो 3 लोग हैं, उन 3 लोगों को एक ही कार में बिठाना है, तो तीनों में से तीनों सिलेक्ट कर लो और इन सबको कार 3 में बिठा दो। तो ये टोटल वेज हो जाएंगे 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1 इज 20 वेज। इसके 20 वेज होंगे। व्हाट अबाउट दिस केस? इसके भी तो 20 वेज ही आएंगे। 113 है, बस कार का ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसके भी आएंगे 20 वेज और इसके भी क्या आएंगे? 20 वेज। तो टोटल कितना हो गया? ये 60 वेज हो गए। 5 लोगों को 3 कार्स में बिठाना है सच दैट हर कार में अलग अलग हर कार में एटलीस्ट एक बंदा बैठे। तो ये केस के हो गए 60 वेज। अब आ जाओ इस केस में। तो पहले 5 में से एक बंदा कार 1 में बिठाना है, तो 5 में से एक सिलेक्ट करो 5C1 और उसको फर्स्ट कार में बिठा दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। बाकी के बचे 4 लोगों में से कार 2 में 2 लोग बिठाने हैं, तो 4 में से 2 लोग सिलेक्ट करो और उनको बिठा दो कार 2 में। तो 4 में से 2 सिलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? 4C2 वेज हो गए। इनटू फाइनली अब क्या करो? बचे 2 लोग, 3 तो बिठा दिए, 2 में से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो भाई 2 में से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं, 2C2 वेज हो गए। ठीक है, और उनको कार 3 में बिठा दो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो 5C1 होता है 5, 4C2 होता है 4 इंटू 3/2 6 और 2C1 होता है 1। तो ये क्या हो गया? 30 वेज। सिमिलरली ये भी 30 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा? 30 वेज आ जाएगा। तो इसके टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास? 90 वेज हो जाएंगे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 60 प्लस 90 which comes out to be 150 ways. So in how many ways can 5 people sit in 3 cars such that no car is empty? The answer comes out to be 150 ways. Okay? इसी से ही रिलेटेड अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लेट्स से यू हैव 10 फ्रेंड्स, आपके 10 दोस्त हैं, F1, F2, F3 से लेकर F8, F9, F10 तक। ठीक है, एंड यू आर थ्रोइंग अ पार्टी। इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट योर फ्रेंड्स? ठीक है, कितने तरीकों से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो? तो या तो अब इसमें कितने तरीके से मतलब है कि या तो आप एक फ्रेंड को इनवाइट करो, या 2 को करो, या 3 को, या 4 को, या 10 के 10 को कर दो, या किसी को भी नहीं करो। अगर आप एक को कर रहे हो तो किस एक को कर रहे हो? F1 को, F2 को, F3 को, किस एक को कर रहे हो? आप 2 को कर रहे हो तो किन को कर रहे हो? 3 को कर रहे हो तो किन 3 को कर रहे हो? ऐसे अलग अलग सोच के करने में तो बहुत दिक्कत होगी, राइट। तो व्हाट यू हैव टू थिंक इज, you have to basically what you have to do is you have to distribute these 10 people into 2 groups. Invited वाला ग्रुप है एक और एक not invited ग्रुप है, as simple as that. So you have to distribute 10 people in these 2 groups, as simple as that. तो भाई अब पहले बंदे को या तो आप इनवाइट वाले ग्रुप में डालोगे या नॉट इनवाइट वाले ग्रुप में डालोगे। तो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 2, 2 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए यहां पर? 2 की पावर 10 यानी कि 1024 हो गया, 1024 हो गया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि आपने यहां एक भी इनवाइट नहीं किया, 10 के 10 को इनवाइट नहीं किया। ठीक है, या तो एक इनवाइट किया और 9 इनवाइट नहीं किए। अब एक जो इनवाइट किया वो यहां चला गया, बाकी सारे 9 यहां चले गए, ये हो सकता था। या फिर ये यहां चला गया, बाकी सारे 9 यहां चले गए, ये हो सकता था। ऐसा करते करते सारे के सारे इनवाइट कर दिए, किसी को नहीं छोड़ा। ये भी पॉसिबिलिटी इस 1024 वेज में आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन एक ये पूछ सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू इनवाइट एटलीस्ट 1 फ्रेंड? कितने तरीकों से आप कम से कम एक फ्रेंड को इनवाइट करो? तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या है?
एक वैसे भी तो तरीके हैं जिसमें आपने किसी को इनवाइट नहीं किया, आपने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो भाई किसी को भी इनवाइट नहीं किया, इसके कितने तरीके होंगे? आपने इसको इनवाइट नहीं किया, एक तरीका, इसको इनवाइट नहीं किया, एक तरीका, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो सारे वंस का मल्टीप्लीकेशन करोगे 1। तो किसी को भी नहीं इनवाइट करने का एक ही तरीका है ना, सबको नॉन इनवाइटेड में डाल दो, एक ही तरीका हुआ वो। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स, वो हो गया आपका 1024, ठीक है। बट इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ वेज ऑफ इनवाइटिंग एटलीस्ट वन फ्रेंड, तो वो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज में जो अनवांटेड केस है वो आप हटा दो। अनवांटेड केस क्या है कि एक को भी इनवाइट नहीं किया, तो एक को भी नहीं इनवाइट किया, उसका तो एक ही तरीका होगा, वो ये वाला है, 0 इनवाइटेड, 10 के 10 नॉट इनवाइटेड। तो वो एक अनवांटेड केस आप हटा दो, ये आ जाएगा 1023। दिस कम्स अबाउट टू बी 1023 यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। एक सिंपल सा एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट और इफ यू हैव टू पोस्ट 4 लेटर्स इन 3 लेटर बॉक्सेस, कितने तरीकों से आप पोस्ट कर सकते हो? नाउ 4 लेटर्स आर ऑल डिफरेंट, दे आर ऑल डिफरेंट, सब पे अलग अलग एड्रेस लिखा है। ये जो 3 लेटर बॉक्सेस हैं ये भी सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे? L1, L2, L3, L4, और लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? फर्स्ट लेटर कैन गो इन एनी ऑफ दीज 3 लेटर बॉक्सेस। सो 3 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4, 81 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्शन दे दूं, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 लेटर इन ईच लेटर बॉक्स, हर लेटर बॉक्स में कम से कम एक लेटर तो होना चाहिए। तो अब नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? उसके लिए पहले आप ग्रुपिंग करोगे कि भाई एक एक इधर चले गए, बचे 2 तो यहां चले गए, या 1 2 1 हो जाए या फिर 2 1 1। एक ग्रुपिंग की ये 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 1 2 इज अ ग्रुपिंग, उसके ये 3 पॉसिबिलिटीज है क्योंकि लेटर बॉक्सेस अलग हैं। और कोई पॉसिबिलिटी होगी? नहीं होगी। तो चलो इसके नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि भाई फर्स्ट लेटर बॉक्स में कौन सा लेटर जाएगा? ये या फिर ये जा सकता है, तो 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, 4C1 हो जाएगा। बचे 3 लेटर्स, उसमें से एक यहां भेजना है, कितने तरीके हो जाएंगे? 3C1 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बचे 2 में से 2 यहां भेजने हैं, तो 2C 2 वेज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 इज 12 वेज, 12 वेज हो गए ये, ठीक है। सिमिलरली इसके भी कितना तरीके होंगे? 12 वेज होंगे, और इसके भी कितने तरीके होंगे? 12 वेज होंगे, ठीक है। तो भाई यहां से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे अपने? 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी कि 36 वेज आ जाएंगे। यू गेट टोटल 36 वेज ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो पहले हमें ग्रुपिंग करनी होती है और उसके हिसाब से हम वेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर today's concept booster video. Thank you. All the best.